Good morning students. Welcome to your EVS class. How are you students? I hope you are fine and doing very well. So students, first of all we will discuss our password, that is swallow. It is a verb students. I have picked this word from our EVS chapter, that is chapter number 5, how our body works. So it means to take into the stomach through the throat. इसका अर्थ है कि गले के रास्ते से पेट में ले जाना. जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो वह गले के रास्ते से पेट में जाता है. So now about using this word to frame sentence, I want to tell you that when we swallow food, it goes into the stomach, or he swallowed the pill. Another one is that food should be chewed well before being swallowed. खाने को स्वेलो करने से पहले, निगलने से पहले अच्छे से चबाना चाहिए. So that was about our password. What we are going to do in our EVS class, students, we will write keywords of chapter number 5 in our notebook. So when we start a new lesson in our notebook, what do we do students? We paste or draw something that is related to our chapter. So वो हमें कैसे करना है, I am going to tell you. Now look at the another board for the instruction as well as the keywords. Yes students, as you know that from today we are going to start the notebook work of chapter number 5, how our body works. So how do we start our notebook work students? I want to remind you that before we start our notebook work of any particular chapter or lesson, what do we do? हम क्या करते हैं? On a new page, हम नए पेज से स्टार्ट करते हैं. On the left side of the page, जो कि blank है आपकी EVS कॉपी में, we draw or paste something that is related to our chapter. हम कोई भी ऑब्जेक्ट या तो ड्रॉ करते हैं या पेस्ट करते हैं, या कुछ भी आप लाइन भी लिख सकते हैं that is related to our chapter. So this is our chapter number 5. आप यहाँ पर कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड लेफ्ट साइड पर ड्रॉ कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं. यू कैन आइदर ड्रॉ एनी ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स. कुछ भी आप इसी तरह से आप ड्रॉ या पेस्ट कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर कीवर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट classwork on the top left side of the page and today's date on the top right corner of the page. In the first line you will write chapter number 5, and in the second line you will write the name of the chapter, that is how our body works. In the third line you will write keywords. This is the heading of our classwork. This is our classwork. ये आपको नोट करना है. I am going to explain all the keywords. मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ. First you listen carefully, then you can note it down. I will send you a pic of this board also for your reference. So in the first line chapter number 5, in the second line how our body works, that is the name of the lesson. In the third line you will write keywords, and from the fourth line we will start writing our first keyword. First keyword is M-A-C-H-I-N-E, machine. I repeat, M-A-C-H-I-N-E, machine. Machine क्या होता है students? एक कोई भी डिवाइस या थिंग दैट मेक्स आवर वर्क इजियर टू डू, हमारे एफर्ट्स को कम करती है और हमारा काम आसान बना देती है. So that is a machine. Do you know our body is called a living machine? हमारी बॉडी को लिविंग मशीन भी कहा जाता है. वैसे जो मशीन्स हम डेली यूज करते हैं वो नॉन लिविंग होती हैं, बट हमारी बॉडी लिविंग मशीन कहलाती है. फर्स्ट इज मशीन. नाउ एट सेकेंड नंबर IMPORTANT, इम्पोर्टेंट. हम इसको इस तरह से रीड करेंगे, इम्पोर्टेंट. तो IMPORTANT, इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट का मतलब है
महत्वपूर्ण, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो बहुत महत्व रखता है, उसको हम इम्पोर्टेंट कहते हैं। हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड टेक केयर ऑफ इट। तो इस तरह से जो बहुत महत्व रखता है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉर्टेंट। एट नंबर थर्ड, REMEMBER, member, remember, REMEMBER, member, remember. Collectively this word is called remember. Remember क्या होता है? याद रखना या याद करना। कुछ चीजों को हम याद करते हैं, उसमें कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? ब्रेन। ब्रेन से हमें मदद करता है ब्रेन सीखने में और याद रखने में चीजों को। सो REMEMBER, दैट इज अवर थर्ड कीवर्ड, रिमेंबर। रिमेंबर का अर्थ है याद रखना। एट नंबर फोर, CON, TROL, ट्रॉल, कंट्रोल। आई रिपीट, CONTROL, कंट्रोल। कंट्रोल का अर्थ होता है अपने होल्ड में लेना या अपने नियंत्रण में लेना, कमांड देना, लीड करना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। आई रिपीट, CONTROL, कंट्रोल। एट नंबर फिफ्थ, HEART, हार्ट, BEAT, बीट, हार्ट बीट। हार्ट मीन्स हृदय या दिल, बीट धड़कन, उसका साउंड। हार्ट की जो साउंड है, दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट। आई रिपीट, HEART, हार्ट, BEAT, बीट, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, इसका अर्थ है। yesterday students we discussed an activity that was related to the heartbeat. in that activity I told you कि आप क्या करेंगे, keep your hand on your left side of the chest, अपनी लेफ्ट साइड पर रखेंगे चेस्ट के हाथ, then try to feel your heartbeat, अपनी हार्ट बीट को फील करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, you will jump as higher or as faster as you can, 10 times जंप करना है आपको। देन अगेन ऑब्जर्व योर हार्ट बीट, तब फिर से अपनी हार्ट बीट को ऑब्जर्व करेंगे। तब आपको क्या पता चलेगा, क्या वो हार्ट बीट फास्टर होगी या स्लो होगी। सो उसका रीजन भी मैंने बताया था, इट विल बी फास्टर जब हम कोई फिजिकल काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन से ज़्यादा जो भी काम करते हैं, उसके बाद हमारा हार्ट जो कि ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में, वो तेज तेज पंप करना शुरू कर देता है। इसी कारण हमें वो हार्ट बीट तेज फील होती है। सो एट नंबर फिफ्थ इज हार्ट बीट। नाउ एट नंबर सिक्स्थ, BREATHE, ब्रीथ, IN, इन। आई रिपीट, BREATHE, ब्रीथ, IN, इन। ये डूइंग वर्ड है। ब्रीथ इन का मतलब है सांस अंदर लेना या सांस को अंदर खींचना। सांस को अंदर खींचना मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन है वो हम ब्रीथ इन करते हैं, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं, जो देयर आर 2 लंग्स इन अवर बॉडी, जो लंग्स हैं वो स्वेल करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस प्रोसेस में वो लंग्स स्वेल भी करते हैं और सिकुड़ते भी हैं। सो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड ब्रीथ इन, और ब्रीथ आउट कही जाती है। यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड है, दैट इज ब्रीथ इन। हम ब्रीथ इन कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट इज एट नंबर 7, swallow, 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 swallow। आज हमारा पासवर्ड भी है swallow। swallow का अर्थ है निगलना, किसी चीज को निगल जाना। वो निगलना क्या होता है, जब हम फूड को खाते हैं और उस फूड को हम गले के रास्ते से स्टमक में ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड swallow। आई रिपीट,
SWALLOW, swallow. At number 8, this is the last keyword of chapter number 5, digest, digest, gest. Collectively it is called digest, digest. डाइजेस्ट का अर्थ है पचाना. पचाना मतलब जब हम खाना खाते हैं तब स्टमक का काम, जब हम स्वेलो कर लेते हैं फूड, तब स्टमक का काम शुरू होता है. वो उस खाने को पचाता है जो हमने खाया है. दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. और यहाँ क्या है, डाइजेस्ट है वर्ड कि पचाना. So students, these were the keywords. There are 8 keywords in our chapter number 5. ये तो थे keywords. I want to repeat all the keywords again. At number 1, machine. At number 2, important. At number 3, remember. At number 4, control. At number 5, it is heartbeat. Number 6, breathe in. Number 7, swallow. At number 8, digest. So these were the keywords of chapter number 5. I want to tell you students कि आपको क्या करना है कि keywords तो आप लिख लेंगे, but on the left side of the page, इस जहाँ आप keywords लिख रहे हैं वो lines का पेज है. left side पर आपको you have to draw or paste something that is related to our chapter. आपको या तो draw करना है या paste करना है. If you are drawing any of the internal or external organs, तो उसका name भी लिखना है. यू कैन यूज कलर्स ऑल्सो. आपको जो भी, अगर आप कोई ऑर्गन ड्रॉ कर रहे हैं या पेस्ट कर रहे हैं तो उनका नेम भी आपको लिखना है. और ये भी आप उसका ग्रुप भी लिख सकते हैं कि सपोज आपने नोज ड्रॉ किया या आईज ड्रॉ की हैं, तो आईज क्या है, दैट इज एक्सटर्नल ऑर्गन. अगर नोज ड्रॉ किया है तो यू कैन राइट नोज एंड देन इट्स ग्रुप क्या है, वो एक्सटर्नल ऑर्गन. अगर आपने कुछ और जैसे हार्ट या ब्रेन ड्रॉ किया है तब आप उसको लिखेंगे उसका नाम हार्ट या ब्रेन, एंड देन यू विल राइट इंटरनल ऑर्गन्स. सो दिस इज योर क्लास वर्क फॉर टुडे. दैट्स ऑल फॉर EVS क्लास टुडे स्टूडेंट्स. टुमारो वी विल राइट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ EVS. सो do your work neatly and nicely students. I will send a pic of this board also. So bye bye for today students. We will meet in our next EVS class. Take care.